संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार कार्यक्रम के शुरुआत अब पार्टी की ओर से अष्टमंगलाचरण यहाँ किया जाएगा। Agonize gele tasebe dike gawa gala sasalo tasebe Jawa sambala kita nyora shawai kushene dede pala de golo tatre gola tautu durge kebyo Sasoni gele tasebe dike gawa gala sasalo dede gawa sambala gele pugun sambara isho नेशनल एंथम हम लोग गाएंगे। हमारा देश का झंडा हमारे सर के ऊपर है, उनको हम सेल्फ चलाएंगे। रेडी 1 2 3 नायक जय हे भारत भाग्य विधाता अल्लाह सिंधु गुजरात मराठा अभिनव जल भंगा हिमाचल यमुना गंगा गंगा तब सुबनावे जागे तब सुबहासी समागे जगन मनोर नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय हे। थैंक यू। लेकिन अगर
अहिले खादा जति बेला हामी तपाईँलाई चढाउनु पर्छ त्यति बेला चढाउनुहोस् तपाईँले एकछिन बसिदिनु अहिले भर्खरै पवन खेर रिपोजीज्यू अनि हाम्रो आजको मुख्य अतिथि म्याडम वर्णाली देका आइएस डेप्युटी कमिसनर अफ कोक्राझार उहाँले राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन अनि पञ्चशीलको झण्डा उत्तोलन गरेर आजको कार्यक्रम हामीले यहाँको सुरुवात गरे सम्मानित गरिदिनु भयो सम्बोधित गरिदिनु आयोजक समिति के अध्यक्ष लामा चक्र मैडम को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं हमारे आयोजक समिति की ओर से कि इतना व्यस्त है इतना बिजी है फिर भी उन्होंने हमारा जो निमंत्रण है उसको स्वीकार किया है इसलिए हम धन्यवाद जनाते हैं। थैंक यू मैडम। वेलकम कर रहे हैं सत्रह अनि 19 मार्च 2022 देखि आरम्भ भइरहेको कार्यक्रमलाई सायद धेरै नमस्कार। আজিৰ অল ইণ্ডিয়া মাহায়া বৌদ্ধ মণিপা সংঘৰ 29 এনুৱেল কনফাৰেন্স এণ্ড সজঙত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াত উপস্থিত থেংক ইউ সাংগে লোডো খেন ৰিম্পোচে জি, লামা সাংগে পালডেন জি, আচাৰ্য সাংগে পালডেন জি, Organizing Committee বিষয়ববীয়াসকল, General Secretary Shri Santosh Pakrinji, President Shri Lama Chakrabalji, আৰু Cashier Shriman Bahadur Yonzonji। ইয়াত উপস্থিত মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ অতি সন্মানৰ লামাসকল, my respected lamas present here, distinguished guests on the dais, ইয়াত উপস্থিত অতি মৰমৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল, কণমানিসকল আৰু পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সৰলপাৰা আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলালৈ অহা আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, আজিৰ এই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আটাইলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এটা এই উৎসৱমুখী পৰিৱেশ, এই সমগ্ৰ যিটো ইভেণ্ট আপোনালোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, এটা নতুন সংস্কৃতি দেখিবলৈ মই পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু যি ধৰণে ডিচিপ্লিন ৱেত আপোনালোকে কামখিনি কৰিছে সেইটো চাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে মোক জনাইছে যে কিছু আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ আছে, কিছু সমস্যা আছে, ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে, ৰাস্তাৰ প্ৰব্লেমৰ কথা তেখেতে কৈছে, আৰু মই নিশ্চিতভাৱে চেষ্টা কৰিম যে মই যিখিনি পাৰোঁ ইয়াত মই সহায় কৰাৰ। থেংক ইউ। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত যিসকল ইয়াৰে বাসিন্দা হয় আপোনালোক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান শান্তিৰ পৰিৱেশত থাকে, এইটো দেখি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নিশ্চয় আগন্তুক দিনতো পাৰিলে মই ইয়ালৈ আহি থাকিম। কিছু কথা মই উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা গম পাইছোঁ যে এই প্ৰগ্ৰামটো 4 দিনীয়া হ'ব, 16, 17, 18 আৰু 19 মাৰ্চত হ'ব। আৰু সজং নুংগে ইট ইজ আ ফাষ্টিং মেডিচিনেল উপসদা, অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকৰ ফাষ্টিং আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিখিনি কথা উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা জানিবলৈ পাইছোঁ সেইটোৰ পৰা আৰু আপ্লুত হৈ গৈছোঁ যে এটা ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আটাইখিনি কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে। মই বৰ বেছি দীঘলীয়া আজি নকৰোঁ, আপোনালোকেও হয়তো গৰম পাইছে আৰু হয়তো ভাগৰতো আছে,
সেইকাৰণে বৰ বেছি দীঘলীয়া মই নকৰোঁ এটাই কথাৰে মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো সহায় বা যিকোনো পৰামৰ্শৰ বাবে মই সদায় আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ লগৰ এজন হৈ উপস্থিত আছোঁ উপস্থিত থাকিম আৰু এইখিনিয়ে কৈ ইয়াত উপস্থিত আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ अलिक अल्गो लामाहरू पछि जानु बिस्तारै बिस्तारै आइरहनु भएको यहाँ सङ्गठनमा झन्डा उत्तोलन भइसकेको छ यसरी नै मन्त्रपद उच्चारणले मञ्चपट्टि हेलो जानकार हुनुहुन्छ गत 16, 17, 18 अनि आज बिहान 19 तारिक 5 बजेसम्म अल इन्डिया मानिपा बौद्ध संघद्वारा आयोजित एवं प्रमुख धर्मगुरु फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हाम्रा आजको मुख्य अतिथि सुदूर काठमाडौँ नेपालबाट आउनुभएकी हाम्रो अनि छोइङ डोलमा उहाँ सारा विश्वमै प्रख्यात हुनुहुन्छ हाम्रो बौद्ध धर्मको धाम या जसलाई मन्त्र चान्टिङ भन्छौँ र उहाँको सुमधुर स्वरलाई हामी कहिले गायकीको भने गायक या गायिका भनेर पनि हामीले अप्नाइसके आज 35 गर्नुभएको को चाहिँ हाम्रो आमन्त्रणमा सुदूर नौबेङ्गलोर आउनुभएको बुद्ध श्री महातेरा भान्ते नौबेङ्गलोर हेलो कोकराझार वहाँ को भी हम लोग यहाँ संबोधित कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर विजिट। श्री विशाल लामा MLA कोकराझार चन्द्रकुमार गौन अनिश हुन्छ उहाँ पनि काठमाडौँ तामाङ फोक सङ्घको लागि उहाँ विख्यात हुनुहुन्छ
यसै गरी हामी माझ उहाँ सोसल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ। यसै गरी हामी माझ सलपाडा गाउँका प्राक्तन हेडम्यान प्रमुख गाउँका प्रमुख हुनुहुन्छ मनोज शर्मा, उहाँलाई पनि हामी परिचय खादा देश सम्बर्धना गर्न चाहन्छु। परिचय कॉलेज श्री मनबहादुर रतन वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मैनिफेस्टेशन श्री रामा हिमाल प्रेसिडेंट पूर्वांचल महानगर मानिपा संघ श्री रामा संघ जनता एसोसिएशन सेक्रेटरी आईबीसी संघ का केंद्रीय सदस्यगण, उपासक उपासिका र सबै भक्तहरूलाई मेरो हार्दिक आशीर्वाद छ। साथै आज यो 2 वर्षको अत्यन्तै कष्टमय अवधिलाई पार गर्दै कुशल कर्मलाई अपनाउन नै हामी एकत्रित भएको हौँ भन्ने शास्त्रमा यत्रतत्र देखिन्छ। धर्मले आज हामी किन एकत्रित छौँ भन्दाखेरि आजभन्दा 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सजित परियोधपनं एतन भोजन शासनं भनेर सब पापस्य करणं शरीर वचन चित्तद्वारा हामीले पाप कर्महरूलाई असत् कार्यहरूलाई टाक्ने कोसिस गर्दै कुशलस्य उपसम्पदा राम्रो कर्महरू अनि यहाँहरूलाई म साधुवाद दिन चाहन्छु, आशीर्वाद गर्न चाहन्छु कि निकट भविष्यमा पनि यस प्रकारको कार्यक्रमहरूलाई यथावत राखोस् भन्ने म यहाँहरूलाई पुनः आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा व्यस्तता समय अति नै व्यस्तता समय लिएर अनि उहाँलाई समयलाई पनि उहाँले स्थगित राखेर उपस्थित हुनु भइदिएकोमा हाम्रा अनि स्वयं जो मलाई एमएलए महोदयहरू जसै कोक्राझारका एमएलए महोदय र कालचिनीका एमएलए महोदय, उहाँहरूका पनि व्यस्तता कार्यक्रमलाई स्थगित राखेर उहाँहरू यस समारोहमा अवकष्ट गर्ने उहाँहरूले लिएर उठाउनुभयो। यसको लागि पनि उहाँहरूलाई कोटि अनि धन्यवाद छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा लामा धर्मगुरुगणहरू अनि विशिष्ट अतिथि काठमाडौँबाट पाल्नुभएका हाम्रा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको छ र त्यसपछि नै उहाँलाई हामी सबैले नमन गर्दै भाषण गर्ने क्रममा हाम्रो बिचमा उपस्थित गेस्ट कोक्राझार स्थानीय एमएलए लोरेन्सज्यूलाई आफ्नो बहुमूल्य भाषण राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सबको लागि नमस्कार। बुद्धिस्ट ऑल इंडिया महानायक बुद्धिस्ट मनिपा, respected honorable chief guest of this religious ADC कोक्राझार और यहाँ आए हुए नेपाल, वेस्ट बंगाल और असम की भिन्न प्रांत से आए हुए आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं इस क्षेत्र की एमएलए होने के नाते मैं आप सबको इस सरल पराकी ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं शुरू से आ नहीं पाया क्योंकि हमारा असम की जो असेंबली हो रहे हैं
थोड़े बाद में फिर जाना होगा मुझे, क्योंकि मंडे को हमारा राज्यसभा की नॉमिनेशन है। असम में 2 सीट है, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट हमको मिलेंगे। मैं एमएलए यूपीपीएल की एमएलए का लीडर होने के नाते मेरे पार्टी ने मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपा है, इसलिए अभी मुझे गुवाहाटी जाना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे क्षेत्र में ये ऐसा पहली बार अटेंड करने मुझे मिला है। होना था लेकिन कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया। फिर भी आज यहाँ शांति और अमन के लिए आप लोग ने इकट्ठा होकर जो प्यार करेगा, जो धर्म की बात करेंगे, मुझे अच्छा लगा। हम सभी मानते हैं परमेश्वर एक ही है, सब रिलीजन मानते हैं परमेश्वर एक। समस्या है, खास करके ये सरलपरा भूटान बॉर्डर के पास है। यहाँ बिजली नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, और आप लोग देख रहे हैं एक रास्ता से आप गुजर के आ रहे हैं। मेरा कोशिश रहेगा, सिर्फ मैं 9 महीने का एमएलए हूँ, ये फर्स्ट टाइम मेरा एमएलए और सिर्फ 9 महीना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और ख़ास करके यहाँ हमारा जो काउंसिल है 6 शेड्यूल काउंसिल, हमारा माननीय चीफ ऑफ बीटीआर की काउंसिल के चीफ वो आ रहे हैं। बहुत हमारा परिकल्पना है इस बॉर्डर एरिया में काम करने के लिए, यहाँ के रहने वाले भाई बहनों के लिए जैसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तरह यहाँ रहन सहन पाए। इसलिए हमारा जो फंडामेंटल जो राइट्स है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग की पार्टी, हमारा जो काउंसिल ये सोच रहे हैं और ये आने वाले दिन में होगा। स्पीकर प्रेम लामा, मीडिया सेक्रेटरी अखिल भारतीय महानुभाव मानव संघता र उहाँलाई पनि पदद्वारा सम्बर्धना गर्न गइरहेको छु। र 9औं कापुलाटासी दिले परम पावन के रिपोर्टज्यू उहाँलाई शिरोपर राख्दै आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि एवं अतिथिवर्गलाई ससम्मान अनि अभिनन्दन राख्दै अखिल भारतीय महायाना बौद्धिस्ट मानिपा सङ्घको जन्मदेखि आजसम्म के रहेछ त अखिल भारतीय महायाना बौद्धिस्ट मानिपा एसोसिएसन, त्यसको बारे छोटो उद्गार तपाईँहरूको समक्ष राख्दैछु। छोटो अखिल भारतीय महायाना बौद्ध मानिपा सङ्घ एउटा सम्पूर्ण अराजनैतिक बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको एउटा संस्थान, महायानी पन्थीहरूको एउटा संस्थान हो, जसको स्थापना आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि या 35 वर्ष अगाडि एज पर अफिसियल रेकर्डमा 1987 सालमा यस सङ्घको नाम अखिल भारतीय महायाना बौद्ध मानिपा सङ्घ राखिएको हो। तर 1985 सर्वप्रथम परम पावन खेर रिम्पोछेज्यू डुवर्स भेकमा 1985 आउँदाखेरि सर्वप्रथम डुवर्स मानिपा सङ्घ राखिएको थियो। सुदूर दार्जिलिङ पहाडको सुन्दर वातावरणमा 1952 सालको 25 मे तिथि अनुसार 11 मे एउटा लामा परिवारमा एकजना बालकको जन्म भयो। उहाँ आज हाम्रो खेर रिम्पोछे साङ्गे गुरुजी हुनुहुन्छ। 5 वर्षको उमेरदेखि नै रिम्पोछे आफ्नो घरमा पूजापाठ देख्दा, गाउँ छिमेकीमा पूजापाठ हुँदा, आपा लामा भएकोले गर्दाखेरि घरमा पूजापाठ हुँदाखेरि 5 वर्ष उमेरदेखि नै उहाँ वज्र आसनमा बसेर ध्यानमग्न भएको कुराहरू उहाँको बुढापाकाहरूले बताएको दस्तावेजमा हामीले पाउँछौँ। 7 वर्षको उमेरमा उसको इनर इन्स्टिङ्क्टले उसलाई तानेर लिएर गएर दार्जिलिङको एउटा गुम्बामा उहाँले आफ्नो धर्मको शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। प्राथमिक शिक्षा पछि नै रिम्पोछेको इनर इन्स्टिङ्क्टले होला दार्जिलिङ जिल्लामा प्राथमिक शिक्षाको पछि
उच्च शिक्षाको निम्ति बनारसतर्फ लाग्नुभयो। बनारसमा पाली संस्कृत भाषा, मगधी भाषामा अध्ययन गरी बौद्ध धर्मको आचार्य, सर्वस्व उपाधि आचार्य उपाधिद्वारा उहाँ सुशोभित हुनुभयो। अनि उहाँको दक्षताले गर्दाखेरि he has got many opportunities to go to abroad. विदेशमा गएर थुप्रो टु बी ए हायर स्कलर अफ बुद्धिज्मको निम्ति उहाँले थुप्रो अपर्च्युनिटिजहरू पाउनुभएको थियो। रिम्पोचेले त्यो अपर्च्युनिटिजहरू सहजै प्रत्याख्यान गर्नुभयो। पछि हामीले उहाँलाई निहालेर हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि रिम्पोचेको इनर स्पिरिटमा थियो त्यो हिमालय तराई क्षेत्रमा लगायत अरुणाचलदेखि लिएर जति पनि हिमालय तराई क्षेत्रमा छरपष्ट भएको जन्मजात बौद्धहरू, विशेष गरेर नेपाली बोल्ने बौद्धहरूमा बौद्ध धर्म चाहिँ के रहेछ केही थाहा भएन। आफ्नो आफ्नो खुसीले, आफ्नो आफ्नो हिसाबले, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रीय लामाले, त्यति बेला योगायोगको अवस्था पनि कम थियो, जहाँ यातायात पनि त्यो पाउँदैन। म जान्दिनँ तपाईँको यहाँ नानीहरूले स्कलरहरू पाउँछ कि पाउँदैन, स्कलरसिपहरू पाउँछ कि पाउँदैन बुद्धिस्ट नानीहरू। आसाममा त अहिले द्याट इज यो त सिड्युल्ड हो, स्टेट वाइज सिड्युल हो। जस्तो हामी तामाङहरू वेस्ट बेङ्गलमा ट्राइबल भएका छौँ, तपाईँहरू भएको छैन, कुनै दिन होला तपाईँ तामाङहरू कुनै दिन होला। तर बुद्धिज्म त नेसनल कुरा हो नि त, माइनोरिटी त नेसनलिटीको कुरा हो। र यहाँ थुप्रो माइनोरिटी भएको खण्डमा हामी यहाँ माग गर्न चाहन्छौँ या सुझाव दिन चाहन्छौँ कि स्कलरसिपको व्यवस्था गरिदिए जाओस्। प्रमोसन अफ द आर्ट एन्ड क्राफ्ट, त्यो थाङ्काहरू बनाउने विभिन्न जुन चाहिँ कामहरू छ, स्कल्पचरको कामहरू छ, साथमा हामीले धुपहरू बनाउने कि रेकग्नाइजेसन अफ द बुद्धिस्ट एडुकेसन, बुद्धिस्ट मङ्कहरूले जुन चाहिँ एडुकेसन छ त्यसलाई रेकग्नाइज गर्नु भनेर। धन्यवाद तपाईँलाई। में प्रसार करने के लिए आम लोग जो यहाँ पर एकत्र हूँ, ये तो बुद्ध का मूल शिक्षा है, इसलिए मुझे ये पालन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति इस 5 नियमों को कड़ाई से जीवन में उतारेंगे, अनुशीलन करेंगे, वो अपना जीवन जीने का कला अपने आप सीख जाएगा। और दूसरा जो है वो आध्यात्मिक जीवन है, पारमार्थिक जीवन है। एक बार वंदना करते हुए और आप लोगों को फिर और एक बार मंगल मंत्री देकर यहाँ पर जो 2 शब्द बोलने के लिए जो मौका दिया है, सबको फिर और एक बार धन्यवाद देके हमारा भाषण यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबे सत्ता सुखी का हो तो इस संसार के सारे प्राणी सुखी हो, दुख से सुख करा मिले। धन्यवाद। অনুরোধ জানা হয়েছে আৰু লগত আমাৰ নিজৰ ভাষণ দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ऑल इंडिया महायाना बुद्धिस्ट महानिपा एसोसिएशन के 29 एनुअल कॉन्फ्रेंस सरलपारा में आयोजन किया है। इसमें उपस्थित हमारा धर्मगुरु और सभी अतिथियों को मैं पहले बदौलन की सभी जनता की ओर से स्वागत करता हूं और मैं नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित अतिथियों के बीच में काफ़ी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और यहाँ उपस्थित महायाना के बुद्धिस्ट जो रिलीजियस सोसाइटी है, इसके उपस्थित सभी लोगों को मेरे प्यार और मेरे नमस्कार मैं आपको दे। ये हमारे बदौलन में शायद पहली बार हुआ है। मैं गुरु जी से, आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में फिर से ऐसा एक आयोजन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। अभी हमारे एक दीदी आई हैं उदालगुड़ी से, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा एक मौका मिले
तो हमारा उदालगुरी में भी इसको आयोजन कर सकते हैं। और हम लोग अपने सरकार की तरफ से बिल्कुल आप लोग से जो भी प्रोग्राम होगा इसमें हम लोग से सपोर्ट रहेगा। विश्व में शांति लाने के लिए एक ही पद है, ये भगवान बुद्ध का एक रास्ता है। मैं अपना जो जन्म है, मैं बोडो में हुआ हूँ, तो बोडो में हम लोग का धर्म अलग है, हम लोग बाथो धर्म मानते हैं। लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ, जब दुनिया में शांति और शांति का बात महसूस हुआ, और ख़ास करके हमारे बोडो सोसाइटी में भी 30-40 साल से बहुत हिंसा की एक स्थिति चल रही थी, परिस्थिति चल रही थी। उस समय से शांति लाने का बात जब सोचा, मैंने यही रास्ता देखा कि भगवान बुद्ध ने जो बात, जो बानी हम लोग को दे के गया है, उसको अगर दुनिया के सब लोग हृदय से इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे, पूरा दुनिया में कभी भी हिंसा नहीं होगा। क्योंकि ये सरलपारा के लोगों को भी काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ रहे थे काफ़ी सालों से, उग्रवाद की वजह से, हिंसा की वजह से। यहाँ के रहने वाले हम लोग के गोरखा भाइयों बहनों, बोडो भाइयों बहनों, जो भी हो, आर्मी, पुलिस, उग्रवाद, इसमें ये लोग भी काफ़ी झेलना पड़ रहा था। अभी ईश्वर की कृपा से बोडोलैंड में शांति आ गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आने वाले समय में बोडोलैंड में शांति बनाए रखेगा, बनाए रहेगा, और हर लोग अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना मान सम्मान लेके जी पाएंगे, और सब लोग हम लोग मिलजुल के एक शांति का बोडोलैंड बनाने में, इस हम लोग का गुरु की कृपा से हम लोग इसमें सफल होंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेहमान लोगों को पहले मिलना चाहिए था मुझे भी, लेकिन मैं भी थोड़ा बाहर था, तो इसीलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे ऐसे जो भी कार्यक्रम होगा इसमें मौजूद रहने का, ज़्यादा टाइम लेके सुनने का मैं भी प्रयास मेरी तरफ से पूरा रहेगा। मैं आप लोग को फिर से मेरा तहे दिल से मेरा प्यार, मेरा नमन, मेरा गुरु को मेरा नमन देके मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मन्त्र तपाईँले टिभीमा युट्युबमा सधैँ सुनिराखेका चिज हो, त्यसलाई विशेषता खासै प्राथमिकता नदिउँ। अहिले भर्खरै मैले गुरु बनाएको कुरोको चुरो बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? हजुर, कि भोग लागेर बुझ्दै बुझेन? ल त बुद्ध रत्न त्रिरत्न भन्छौँ नि हामी, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, तीनै रत्नलाई नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, तीनै रत्नलाई नमस्कार, नमस्कार। सबै नमस्कार भन्नुहोस् न। नमस्कार, नमस्कार। प्राणी सबै बराबर है, प्राणी सबै बराबर है, बराबरै गर व्यवहार भन्ने पहिलो रत्न बुद्ध हुन्। बुद्धलाई मेरो नमस्कार, नमस्कार।
बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न तीनै रत्नलाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिना बादल आकाश हेरा बाछ त्यस्तै चित्त लिएर बिना बादल आकाश हेरा बाछ त्यस्तै चित्त लिएर भन्ने दोस्रो रत्न धर्म हुन् धर्मलाई मेरो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न तीनै रत्नलाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अनित्यको बुझेर स्वभाव अनित्य अनित्यको बुझेर स्वभाव त्याग नलौ त्याग अहङ्कार अनित्यको बुझेर स्वभाव त्याग नलौ त्याग अहङ्कार भन्ने तेस्रो रत्न संग हुन् संगलाई मेरो नमस्कार नमस्कार सबैले नमस्कार नमस्कार। बुद्ध रत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न धर्म रत्न संघ रत्न हुन् तीनै रत्नलाई नमस्कार 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 ल त अब सँगै गाउनुपर्छ त सबैलाई थाहा होला नि यो गीत हो थाहा छ ल भोक त कति लागेको होला त्यो अब आफ्नै ठाउँमा छ स्वर है निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस् है तर सुरुमा म 2 लाइन गाउँछु त्यो 2 लाइनको सार बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मेरो गीत विशेषता केही छैन यदि तपाईँले त्यो गीतको सार बुझेन भने त्यतिकै आवाज त मभन्दा राम्रो कति छन् होइन संसारमा तर मेरो विशेषता मेरो गायकी मेरो गीतको विशेषता भनेको भगवान् बुद्धको वाणी उहाँको धर्म देशनालाई मैले मिठासका साथ गुनगुनाएर तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा पस्काउने कोसिस मात्र मेरो हो। मेरो विशेषता केही पनि होइन मेरो त्यही सेवा भावले तपाईँहरूप्रति यो भगवान् बुद्धको दर्शनलाई फेरि मिठासका साथ गुनगुनाएर भए पनि तपाईँहरू सबैको मन मस्तिष्कमा उहाँले दिनुभएको ज्ञानको बास होस् त्यो ज्ञानको बास हुन साथै सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यो विश्वासलाई अनुसरण गर्दै मैले यो गीत गाउन सुरु गरेको हो। वैरभाव खराब हो वैरभाव भनेको त खराब हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ के न वैरभाव खराब हो हाल्छु लडेर
पञ्चशील पालन गर्यो भने हामीले यो वैर भाव खान सक्छौँ। वैर भाव खराब हो हाल्छु लडेर, वैरीलाई हेर्छु माया गरेर। जस्तो सुकै दुष्ट भए पनि उसले पनि आखिर जीवनमा खोजेको माया नै हो कि होइन? त्यसैले वैरीलाई हेर्छु माया गरेर, मायालुको आँखामा के हुन्छ? मायालुको आँखामा मायै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोले बुद्ध होस्, चित्त शुद्ध होस् बोले बुद्ध होस्, फेरि एकचोटि चित्त शुद्ध होस् मेरो बोले बुद्ध होस्, मेरो पैतानाले किरै नमरोस्, राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अब राम्रो सुन्नुहोस् है त। सबैसँग होस् मेरो माया नै यस्तो, सबैसँग होस् मेरो माया नै यस्तो, जो भेटे नि मलाई लागोस् मै जस्तो, चोखोपनमा खुल्छ है चोखो संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अब जो फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा होइन फुलै संसार। जय होस्, मङ्गल होस् तपाईँ। हाम्रो धेरै दिनको भोको हामीले जसका निम्ति
हामीले आफ्नो आँखा उहाँको बाटो जोएर बसेका थियौँ। उहाँले साक्षात् दर्शन दिएर हामीलाई सबैलाई गाउनु पनि उहाँले हामीलाई मजबुर पारिदिनु भयो। हामी धन्यवाद। परम पूजनीय आचार्य खेन्चेन रिम्पोछेको चरण कमलमा मेरो सष्टम दण्डवत अर्पण गर्दै उपस्थित बौद्धहरूको गौरव सुदूर छिमेकी राष्ट्रबाट आउन भएकी हाम्रा अति आदरणीय अनि छिमेकी राष्ट्रबाट पाल्नु भएका सुदूर प्रेमालबाट हाम्रा आसनगण यस मञ्चको अघि विराजमान हुनुहुन्छ। यो 29औं सोजुङ न्युने उपसोधमा सहभागी बन्नु भएर आज हजुरहरूले जुन चाहिँ नाचेर जुन चाहिँ न्युने है सोजुङ र न्युने जुन चाहिँ हजुरहरूले आज सम्पन्न गर्नुभयो र विशेष म विश्वास गर्छु यस पवित्र भूमिका छ। यी मन्त्रोच्चारहरूले यस भेगमा भएका सम्पूर्ण चराचरहरूलाई नै कल्याण गर्नेछ म विश्वास गर्छु। जसरी आज भन्नुपर्दा भनौँ हाम्रो डुवर्स भेगमा जतिखेर त्राही थियो त्यस बेला 80को दशकमा भनौँ हाम्रा परम पूजनीय खेन्चेन रिम्पोछेको पहिला परेर भनौँ उहाँको आगमनले हामी सबैले बौद्ध र भगवान बुद्ध हामी चिन्न सक्षम भएको हामी महसुस गर्छौँ र म कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु हाम्रा परम पूजनीय खेन्चेन रिम्पोछेप्रति। उहाँको सानिध्यमा भनौँ हामीले धेरै छोडिदिने हामी विशेष अनुरोध गर्छौँ र अहिले तपाईहरु सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसिदिने हामी विशेष अनुरोध गर्छौँ। बाटोमा कसै पनि नबसिदिनु।
निरपथ